केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कल परसों में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट विथ कंसंट्रेशन। इसी के रेफरेंस में डिवाई हकल ने बहुत अच्छी थ्योरी है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं डिवाई हकल theory of strong electrolyte. Strong electrolytes. सेकेंड इसको हम लोग डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ के नाम से भी जाना। अब इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायमेंशन, यही है लिमिटिंग लॉ। आप नोट करिए, इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब C0 होगा और ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख ले आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन द एक्टिविटी कोएफिशिएंट, the activity coefficient of strong electrolyte are unity आपको भी मैं बता चुका हूं कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक, और वो किसके लिए होगी? आइडियल। बट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, the activity coefficient of a strong electrolyte are no longer unity, but deviation from ideal behavior increases with the strength of solution, डिवाई हकल proposed a theory, डिवाई हकल proposed a theory to account for the deviation, from ideal behavior of activity coefficient, या सही सेंटेंस अगर आपको निकालना हो तो टू अकाउंट फॉर द डेविएशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट फ्रॉम आइडियल
behavior. This theory is known as Debye-Huckel theory of dilute ionic solution. Debye-Huckel theory of dilute ionic solution. ORR. Debye-Huckel theory of activity coefficient. This theory explains satisfactorily the variation of activity coefficient of strong electrolyte with concentration at infinite dilution. According to this theory, number first जो आपको मैंने बताया था कि कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर उसको आप डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के बीच एक प्रकार का इंटर आयनिक फोर्स का। तो फर्स्ट आप नोट करिए, इंटर आयनिक फोर्सेस exist between the ions of strong electrolyte. Number second, there is an ionic atmosphere surrounding an ion. एक आयन के चारों तरफ एक प्रकार आयनों का एटमॉस्फेयर होता है। अब जो मैंने आपको बताया, एक डाइल्यूशन का आयन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए नंबर थर्ड, the ionic atmosphere carries a net charge opposite to that of an ion. जो आयनिक एटमॉस्फेयर अगर पॉजिटिव है तो निश्चित है किसके आयन की तरफ, निगेटिव आयन की तरफ, चारों तरफ रहेगा। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, in
in finite dilute solution, in a infinite dilute solutions, interionic forces are negligible. Interionic force are negligible. इंटरआयनिक फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। अब जब आपका डाइल्यूशन में इंटरआयनिक फोर्स नहीं होगा तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होगी? 1। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे 1 से डेविएशन, हेंस द एक्टिविटी कोएफिशिएंट would be unity. Activity coefficient would be unity. Activity coefficient would be unity. Number 5. When concentration of solution, when concentration of solution appreciable दिखाई देने लगे, concentration of solution appreciable, the interionic forces produces an additional change, in thermodynamic potential, the solution will not behave as ideal one, and the activity coefficient will be different from unity. Next, in a solution of strong electrolyte, interionic forces produces an additional change in thermodynamic potential, which causes by dilution. These are 6 assumptions on which Debye-Huckel theory depends. नेक्स्ट पैरा से आप नोट करिए, on the basis of these assumptions, Debye-Huckel provide a mathematical equation
Debye Huckel provide a mathematical equation which gives a method of calculation of activity coefficient of strong electrolyte with concentration in dilution. This is known as Debye-Huckel limiting law. Debye-Huckel limiting law. Mathematically, Debye-Huckel limiting law can be expressed as where Fi is equal to activity coefficient of I, Zi ln C of iron I, a constant for the solvent at a given temperature. और म्यू जो आप जानते हैं, हम लोगों ने पहले बताया था, ये है आयनिक स्ट्रेंथ। एक ही कई नाम से हमने आपको बताया, Debye-Huckel theory और strong electrolyte, Debye-Huckel theory of activity coefficient, Debye-Huckel theory dilute ionic solution, Debye-Huckel limiting law। इक्वेशन को क्या कह देंगे? Debye-Huckel limiting इक्वेशन। क्या आपका नोट हो गया? अब आप लिखिए दिस इक्वेशन इज नोन एज Debye-Huckel limiting law equation। Debye-Huckel limiting law equation। ORR the first approximation of Debye-Huckel theory। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन का, मतलब इसका रिजल्ट क्या। हेडिंग डाल दीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ Debye-Huckel theory ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इंटरप्रिटेशन
कुछ ही पॉइंट पर है जिसको आप पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को हमें फिर से रिपीट करना है। मेन कंसंट्रेशन है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसका कंसेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। और कहां से क्लियर हो जाएगा? इक्वेशन देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में आप लिखिए दिस इक्वेशन एक्सप्रेस, फर्स्ट लिखे जो आपने देखा है वही बताइए, किस किस के बीच में रिलेशन? एक्टिविटी और आयनिक, ये तो है। दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस द वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ आयन। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एन आयन। सेकेंड, पहले बात को बताया था इनफाइनाइट डायल्यूशन यानी आइडियल। देखिए दिस इज वैलिड ओनली फॉर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट कह सकते हो, फॉर वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशंस वो आर ideal solution only. This equation is valid only for very very dilute solutions or according to this equation, according to this equation the activity coefficient of strong electrolyte क्या लिखा? बोलिए क्या लिखा? एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट decreases with increasing ionic strength, increasing ionic strength and valency of ions, and valency of ions. ये डिवाई-हकल थ्योरी का हमने आपको आज की डेट में थ्योरेटिकल बता दिया। किसके लिए? फॉर ओनली डायल्यूट के लिए। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर भी एप्लीकेबल है। इसके कुछ दूसरे फॉर्म भी जिसके डेरिवेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आ करके और आवश्यकता होगी तो वो भी आपको डेरिवेशन में करा। आज की क्लास यही हमारी